Welcome to the Ramsar classes for IIT, JEE, NEET, and Olympiads. Today we have with us Ramsar. Welcome to the studio, sir. Thanks for having me here. Ramsar is having 16 plus years of experience. He's an educational innovator, integrating technology through AI and ML. Sir, uh, so we would like to have your inputs for the incidents happening around, right? If we talk about, we have March approaching. If we talk about the students, there are only 0.5% of the students who are making up to IIT, Yeah. and 7 to 8% of the students who are making up to NEET, right? Yes. Now, how can we turn these odds in our favor? Okay, so turning the odds into the favor of a student, it is all about the preparation journey, the learning journey of a student. And the Okay. learning journey start as soon as possible, right? When a student comes in the class ninth onward, after class 8, तो उन्हें अपनी पूरी लर्निंग जर्नी को डिफाइन करने के लिए उनके पास 4 साल का टाइम है. सो 4 ईयर इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम. Okay. और 4 ईयर में वो अपनी पूरी की पूरी लर्निंग जर्नी मैप करके कहाँ पर उनके गैप्स हैं, ठीक है, क्या उनके हर्डल हैं. सो वी हैव ए आई एंड एम एल लर्निंग असेसमेंट इंजन. ठीक है, वो असेस करता है इंजन, क्यूरेट करके आपका एक डैशबोर्ड बनाता है. उस डैशबोर्ड में आपको मालूम पड़ता है कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन केस ऑफ जेई एंड इन केस ऑफ नीट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, आप कहाँ लैक, बच्चा कहाँ लैक कर रहा है, किस सब्जेक्ट में उसको कमांड नहीं है, कहाँ पर उसके गैप आ रहे हैं, वो सारा का सारा हम पहले क्यूरेट करते हैं. बिकॉज आवर अप्रोच इज़ नॉट यूनिफॉर्मिटी, आवर अप्रोच इज़ यूनिकनेस. बिकॉज Okay. बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक. तो Right. हम बिलीव करते हैं कि हर बच्चे की एक जर्नी है. उस जर्नी में उसके गैप को हम जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लें और उसको एड्रेस कर दें, जिससे कि क्या है कि उसका एक इंटरेस्ट लेवल क्रिएट हो जाए. और हमेशा सब्जेक्ट में जब इंटरेस्ट लेवल बनता है तभी बच्चा उसमें एक्सेल कर पाता है. So that is our philosophy. That is the philosophy of Ramsar classes, and we have a team of experts from NIT and IITs, and they are doing this kind of phenomenal work. How to integrate the technology in the learning assessment, how to create a customized plan. Wow. So this is the whole things we are doing in the Ramsar classes. Oh, that's a great thing. I think in the educational field, it's an innovation, I would say, Yes. that you're creating that difference to this education hub. So, sir, how can a student plan Yeah. for the daily schedule? You're saying that one should opt, you get to know through AI and ML techniques, Yeah. right? So, what is being assessed through the AI and ML technique, first of all? Yes. And then, what should be the daily routine after whatever is being assessed through AI and ML techniques? Correct. Correct. So very good questions. As I said, कि AI and ML is a kind of analytics, analytics kind of things which integrates the learning journey in the learning journey of a student. So suppose a student comes to Ramsar classes. So we give them, we just introduce the NLP open-ended question. बच्चे से हम एक सर्टेन क्वेश्चंस पूछते हैं अच्छा. कि आपका कहाँ पर इंटरेस्ट है, आप कहाँ लैक करते हो. वी हैव डेटाबेस देयर. Right. ठीक है, और उस डेटाबेस के बेसिस पे स्टूडेंट उसको फिल करता है, अपने सारे के सारे असेसमेंट कंप्लीट करता है. देन वी गो फॉर द सब्जेक्ट बेस्ड असेसमेंट Okay. कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कैसा कर रहा है. उसके बाद देयर इज अ डैशबोर्ड. वो डैशबोर्ड क्रिएट होता है. उस डैशबोर्ड में वी आर हैविंग द लीडर बोर्ड. लीडर बोर्ड में निकल के आता है कि बच्चा फिजिक्स में कितना परसेंट कर रहा है, केमिस्ट्री में कैसा कर रहा है, मैथ में कैसा कर रहा है, या बायो में कैसा कर रहा है. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आइडेंटिफाई होता है. उसमें मालूम मालूम पड़ता है हमें कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है. सपोज एक बच्चा फिजिक्स में स्ट्रांग हो सकता है, Right. मैथ में स्ट्रांग हो सकता है. जो बच्चा जनरली फिजिक्स और मैथ में स्ट्रांग होता है, तो मेरा जो 16+ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैंने देखा है कि वो बच्चा केमिस्ट्री में बहुत वीक होगा, पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. Okay. क्यों? क्योंकि उसका जो लॉजिकल अप्रोच है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ फिट नहीं हो रहा है. Okay. ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड में निकल के आता है कि बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे का क्या हर्डल है, और बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है. Okay. तो वो हम स्टार्टिंग से ही क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा यहाँ पे वीक है, यहाँ पे उसका गैप है. तो पर्टिकुलर जो फैकल्टी, केमिस्ट्री की फैकल्टी, उसको बोल देंगे कि आप इसके लिए ज़्यादा मेहनत करो, आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको MCQs दो, ज़्यादा क्वेश्चंस दो. और विद इन द ऑन द फोर्टनाइटली बेसिस, विद इन 15 डेज एक असेसमेंट फिर से होता है. Okay. और उसमें वी हैव जनरली सीन दैट 20-25% इंक्रीमेंट इन द ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथ. उनकी स्ट्रेंथ में आपका इंक्रीमेंट होता है, एंड दैट इज हाउ इट क्रिएट्स ए फिनोमिनल आउटकम व्हेन इट कम्स टू द रिजल्ट. सो एज आई सेड कि जो हम लोग हैं, द फैकल्टीज आर द कैटालिस्ट. हम क्या है, हम कैटालिस्ट हैं. वी कैन एनहेंस द यील्ड, बट देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ स्टडी. Definitely. सेल्फ स्टडी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, एंड दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाई ए स्टूडेंट.
Okay. तो उसके लिए हम एक डेली रूटीन प्लान करते हैं एंड दे फॉलो द डेली रूटीन एज वेल. Okay, so when you talk about self-study or daily routine, Yeah. I think this test and everything brings a lot of clarity. Yes. But how to, manage that daily routine, or what should be the daily routine as you suggested? Correct. So a daily routine plays a pivotal role. It's a paramount for each and every individual. तो जनरली आई इंकरेज माई स्टूडेंट कि आप लेट नाइट की जगह आप अर्ली मॉर्निंग में उठो. Okay. वेकअप यू वेकअप सपोज टू बी एट 4. Okay. यदि आप 4 नहीं कर पा रहे हो तो 5 पे आ जाओ. बट 5 to 6 जो आपका 1 आवर है, दैट आवर इज नोन एज द गोल्डन आवर. Okay. वो गोल्डन आवर क्यों होता है? क्योंकि आपके जो माइंड की रिसेप्टिविटी है, द रिसेप्टिविटी इज वेरी हाई. Right. So when you go for the recalling of the concept, when you go for the reading of your previous day concepts, जो आपने previous day में पढ़ाई की है वो क्या पढ़ाई की है, यदि आप उसको रिवाइज करोगे तो within 1 hour you can do lot of things because the receptivity of brain is very high In the morning hours. in the morning hours. Yeah, and this is a well proven fact, right? After that a student has to complete the daily routine. Right. डेली रूटीन के बाद उसका क्या होगा? वो अपनी कोचिंग जा रहा है, अपने स्कूल्स जा रहा है, ठीक है. स्कूल्स के बाद शाम को वो हमारे क्लासेस आ रहा है. क्लासेस में आने के बाद जब वो अपने घर जा रहा है तो घर में उसके लिए सेल्फ स्टडी के लिए ऐसा टाइम डिसाइड होना चाहिए कि आप भले ही डेली 1 आवर आप दो इस सब्जेक्ट को, बट यू हैव टू अलॉट द टाइम टू इस सब्जेक्ट. एंड ऑल्सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ एक्टिविटी वेयर माइंड कैन फील रिफ्रेश, Right. because rejuvenation of mind is very very important. It's really important. Right. So after 1 hour of study, take the break of 10 minutes. Okay. Keep yourself hydrated. Hydration is also very key part, very paramount part, vital part for the body. We're talking about Pomodoro technique here. Yeah, right. So all these things are very very important. So we design the daily routines for student. They need to